Hello students, welcome to your English class. I am Rekha Tawar and today we are going to continue fourth chapter of your movements book. In the previous video, we had read some part of the story where we had come to know that a guru and his disciple visited the kingdom of fools and found that people were working during the night and sleeping during the day, and everything there was costing only a single dudu, which was the currency of that place. The guru left that place as it was not safe to stay there, while the disciple wanted to have cheap good food, so he stayed on there. Then another story continued that a thief broke into a merchant's house, and while he was making a hole in the wall collapsed and he died. The thief's brother went to the king and wanted justice and the criminal to be punished. The king assured him that he will get justice and whoever has killed his brother will be punished. The merchant was summoned, and then merchant put the blame on the wall maker. Then wall maker put the blame on the girl who was moving here and there, that while he was making the wall. The girl put the blame on the goldsmith, and goldsmith again told that the merchant's father was responsible for him delaying the jewelry of that dancing girl. Now the king and minister decided that this merchant should be executed because it was his father who was responsible for not making a strong wall. अब जब ये सब हो रहा था, उसके बाद जब ये सब हो गया और एग्जीक्यूशन की तैयारी हो रही थी, न्यू स्टेक वॉज बीइंग मेड and it was being sharpened, then it occurred to the minister that the merchant was too thin to be executed on the stake. कि मर्चेंट जो है, व्यापारी जो है, वो बहुत पतला है और उसकी गर्दन इस पर रखे जाने पर सही से फिट नहीं होगी. और हिज आइडिया अपील टू द किंग ऑल्सो. राजा को भी ये आइडिया वास्तव में सही लगा. तो उसके बाद क्या हुआ? लेट अस रीड एंड फाइंड आउट. What shall we do? He said. अब राजा ने कहा, अब हम क्या करेंगे? When suddenly it struck him that all they needed to do was to find a man fat enough to fit the stake. When suddenly, तब अचानक, it struck him, उसको एक बात स्ट्राइक हुई, उसे ऐसे एकदम से विचार आया that all they needed to do, कि उन्हें चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ इतना करना है to find a fat man, कि वो एक मोटा सा आदमी ढूंढे to fit the stake, जो कि सूली पर चढ़ाया जा सके. The servant was immediately sent for all over the town looking for a man who would fit the stake. नौकरों को तुरंत दौड़ा दिया गया कि पूरे शहर में ढूंढ के आओ, कोई ऐसा इंसान मिल जाए जो इस स्टेक पर फिट हो जाए, बिल्कुल सही आ जाए उस स्टेक के हिसाब से. And their eyes fell on the disciple who had fattened himself for months on bananas and rice and wheat and ghee. और उनकी नज़रें उस डिसाइपल पर पड़ी. ये जो सर्वेंट्स ढूंढने गए थे, एक मोटा सा आदमी, उनकी नज़र पड़ी उस चेले के ऊपर, who had fattened himself, जिसने अपने आप को मोटा कर दिया था. for months on, महीनों से वो केले, चावल, आटा और घी, गेहूँ, घी, सब कुछ अच्छी अच्छी चीज़ें खाते जा रहा था और मोटा होते जा रहा था.
तो उसको पकड़ लिया गया। अब वो क्या कहता है, व्हाट आई हैव डन रॉन्ग, व्हाट हैव आई डन रॉन्ग, क्या गलत किया मैंने, आई एम इनोसेंट, मैं तो बिल्कुल इनोसेंट हूँ, आई एम अ सन्यासी, बल्कि सन्यासी हूँ। ही क्राइड, वो चिल्लाने लगा। That may be true, but it's the royal decree that we should find a man fat enough to fit the stake. They said. अब बेचारे सर्वेंट्स क्या कहते हैं कि That may be true, हो सकता है तुम सच कह रहे हो कि तुम भोले भाले इंसान हो, तुमने कोई गुनाह अपराध नहीं किया है, बट इट्स ए रॉयल डिक्री। डिक्री क्या होता है, एन ऑफिशियल डिसीजन, कोई भी ऑफिस से लिया गया डिसीजन या कोर्ट से लिया गया डिसीजन जो है, दैट इज कॉल्ड डिक्री। कि ये तो आदेश है, रॉयल राजा का आदेश है, दैट वी शुड फाइंड अ मैन फैट इनफ टू फिट द स्टेक, हमें ऐसा आदमी ढूंढना है जो इस स्टेक पर फिट बैठ जाए। दे सैड, उन्होंने कहा, एंड कैरिड हिम टू द प्लेस ऑफ एग्जीक्यूशन, और उसे उस जगह पर ले गए जहाँ पर एग्जीक्यूशन होना था, जहाँ पर उसे मारा जाना था। ही रिमेंबर्ड हिज वाइज गुरुज वर्ड्स, उसे अब गुरु के बुद्धिमता भरे, बुद्धिमानी भरे वो शब्द याद आ रहे थे। दिस इज अ सिटी ऑफ फूल्स, ये बेवकूफ़ों का राज्य है। यू डोंट नो व्हाट दे विल डू नेक्स्ट, तुम्हें नहीं पता कि वो अगले क्षण तुम्हारे साथ क्या करेंगे। वाइल ही वॉज वेटिंग फॉर डेथ, जब वो मृत्यु का इंतजार कर रहा था, ही प्रेड टू हिज गुरु इन हिज हार्ट, उसने अपने मन में अपने गुरु से प्रार्थना की, आस्किंग हिम टू हियर हिज क्राई वेर एवर ही वॉज, और मन मन में कहने लगा भगवान कि गुरु जी जहाँ भी हो मेरी बात को सुनो। द गुरु सॉ एवरीथिंग इन अ विजन, और गुरु को भी एक सपने में ये सब कुछ दिखाई दिया। ही हैड मैजिक पावर्स, उनके पास मैजिकल पावर्स थी, जादू भरी पावर्स थी। गुरु सन्यासियों के पास कुछ अलग तरह की पावर्स होती है, तो ऐसी उनके पास बहुत अच्छी सी पावर थी। ही कुड सी फार एंड ही कुड सी द फ्यूचर, वो दूर की चीज़ देख सकते थे और वो भविष्य को भी देख सकते थे। एंड ही कुड सी द प्रेजेंट, जैसे कि वो वर्तमान को देख सकते थे, एंड द पास्ट, और बीते समय को भी देख सकते थे। He arrived at once to save his disciple, अपने डिसाइपल को, अपने चेले को बचाने के लिए वो तुरंत वहाँ पहुँच गए। Who had got himself into such a scrape through love of food, जो कि इस तरह की डेंजरस, स्क्रेप होता है डेंजरस सिचुएशन, तो इस तरह की डेंजरस सिचुएशन में अपने आप को फंसा चुका था, और केवल किस लिए फंसा चुका था, बिकॉज ऑफ लव ऑफ फूड, खाने के लालच में, सिर्फ इतने लालच में उसने अपने आप जान को ऐसे जोखिम में डाल दिया था। As soon as he arrived, he scolded the disciple, जैसे ही वो वहाँ पहुँचे तो उन्होंने डिसाइपल को डांट लगानी शुरू कर दी। एंड टोल्ड हिम समथिंग इन ए विस्पर, और उसे कुछ विस्पर्स में कहा। विस्पर क्या होता है, टू टॉक सॉफ्टली, धीमी धीमी आवाज़ में बात करना, कानाफूसी करना, तो धीमे धीमे उसने कुछ समझाया उसे। देन ही वेंट टू द किंग एंड एड्रेस्ड हिम, फिर वो राजा के पास गए और उससे एड्रेस करके, उससे बात करके बोलने लगे, ओ वाइजेस्ट ऑफ किंग्स, हु इज़ ग्रेटर, द गुरु और द डिसाइपल, और बड़ा उसको बड़ी रिस्पेक्टफुली उससे कहा कि अरे बुद्धिमानों से बुद्धिमान, सबसे बुद्धिमान राजा, हु इज़ ग्रेटर, आप बताइए कौन बड़ा है, द गुरु और द डिसाइपल, गुरु या चेला। ऑफ कोर्स द गुरु, नो डाउट अबाउट इट, व्हाई डू यू आस्क, तो उसने पूछा राजा ने, ऑफ कोर्स बिल्कुल गुरु बड़ा होता है, नो डाउट अबाउट इट, इस बारे में तो कोई शक ही नहीं है, व्हाई डू यू आस्क, तुम क्यों पूछ रहे हो। अब गुरु कहते हैं, देन पुट मी टू स्टेक फर्स्ट बट पुट माई डिसाइपल टू डेथ आफ्टर मी, तो एक काम करिए, पहले मुझे सूली पर चढ़ाइए, फिर मेरे चेले को चढ़ाइए। लो, राजा भी कैसा स्टंट हो गया है एकदम से, लिसनिंग टू द
गुरुज वर्ड्स, गुरु के शब्दों को सुन के कि मुझे सूली पर चढ़ाइए, वो हैरान हो गया. When disciple heard this, he understood and began to clamor. और जब डिसाइपल ने गुरु के शब्दों को सुना, उसकी बात सुनी, तो वो भी समझ गया और began to clamor. Clamor means noisily shouting, noisy shouting. बहुत ज़ोर ज़ोर से शोर शराबा करने लगा. Me first, you brought me here first, put me to death first, not him. और क्या चिल्लाने लगा, मुझे पहले सूली चढ़ाओ, आप पहले मुझे लेके आए थे और इसीलिए मुझे पहले सूली पर चढ़ाना है, उसे नहीं चढ़ाना. द गुरु एंड द डिसाइपल नाउ गॉट इनटू अ फाइट अबाउट हु शुड गो फर्स्ट. अब गुरु और चेले में लड़ाई होने लगी कि पहले किसको मरना चाहिए. द किंग वॉज पजल्ड बाय दिस बिहेवियर. राजा इस तरह के व्यवहार से बहुत ही पजल्ड हो गया, कंफ्यूज्ड हो गया. उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है, मरने के लिए लड़ रहे हैं दोनों. ही आस्क्ड द गुरु, व्हाई डू यू वांट टू डाई. उसने गुरु से पूछा, तुम क्यों मरना चाहते हो. वी चोज हिम बिकॉज वी नीडेड अ फैट मैन फॉर द स्टेक. हमने उसे चुना क्योंकि हमें एक मोटा आदमी चाहिए था सूली पर चढ़ाने के लिए. यू शुडंट आस्क मी सच क्वेश्चंस, पुट मी टू डेथ फर्स्ट, रिप्लाइड द गुरु. अब गुरु ने जवाब दिया कि आप मुझसे ऐसे सवाल मत पूछिए, बस मुझे पहले सूली पर चढ़ा दीजिए. Why? There is some mystery here. अब राजा कहने लगा, क्यों तुम्हें पहले सूली पर चढ़ाया जाए. कुछ ना कुछ तो मिस्ट्री है, कुछ ना कुछ तो रहस्य है, इसमें सीक्रेट है इस बात में कि तुम मरना चाहते हो. एज अ वाइज मैन यू मस्ट मेक मी अंडरस्टैंड. एक समझदार इंसान के तौर पर तुम्हें मुझे समझाना पड़ेगा कि तुम क्यों मरना चाहते हो. विल यू प्रॉमिस टू पुट मी टू डेथ इफ आई टेल यू. आस्क द गुरु. गुरु ने पूछा, क्या तुम प्रॉमिस करते हो कि अगर मैं तुम्हें बता दूं तो तुम पहले मुझे सूली पर चढ़ाओगे. द किंग गेव हिम हिज सोलम वर्ड. राजा ने उसे सीरियस वर्ड, से सोलम वर्ड मीन्स वचन देना, सीरियसली प्रॉमिस. उसने बड़ी वचन दे दिया कि ठीक है ऐसा ही होगा. द गुरु टुक हिम असाइड. गुरु उसे साइड पर ले गया. आउट ऑफ द सर्वेंट्स ईयर शॉट. सर्वेंट्स ईयर शॉट मीन्स सर्वेंट्स हियरिंग रेंज. ऐसी जगह पर ले गया जहाँ पर उसके नौकर नहीं सुन सकें. एंड विस्पर्ड टू हिम. और फिर वैसे ही कानाफूसी के स्टाइल में उसने उसे कहा, डू यू नो वाई वी वॉन्ट टू डाई राइट नाउ द टू ऑफ अस. क्या तुम्हें पता है कि हम दोनों अभी क्यों मरना चाहते हैं. वी हैव बीन ऑल ओवर द वर्ल्ड बट वी हैव नेवर फाउंड अ सिटी लाइक दिस और अ किंग लाइक यू. हम पूरी दुनिया में घूमे हैं लेकिन हमने ऐसा शहर नहीं देखा आज तक, और ना ही तुम्हारे जैसा राजा देखा है. That stake is the stake of the God of justice. ये जो स्टेक है, ये स्टेक गॉड ऑफ जस्टिस है, ये न्याय के देवता की सूली है, ये जो तुम्हारे यहाँ आई है. इट्स न्यू, ये नई है. इट हैज़ नेवर हैड अ क्रिमिनल ऑन इट. इसके ऊपर कोई क्रिमिनल नहीं मरा है. Whoever dies on it first will be reborn as the king of this country. जो भी अभी मरेगा इस पर, वो इस देश का राजा बनेगा. एंड whoever goes next will be the future minister of this country. और उसके बाद जो मरेगा वो इस जगह का मंत्री होगा. We are sick of our ascetic life. Ascetic means austere, बड़ी स्ट्रिक्ट सी लाइफ होती है सेंट्स की. तो वो कहते हैं हम इससे सेंट्स वाली लाइफ से थक गए हैं, ऊब गए हैं. It would be nice to enjoy ourselves as king and minister for a while. तो ये अच्छा होगा कि हम कुछ समय राजा और मंत्री की तरह बिताएं. Now keep your words. अब अपने वचन का पालन करो, my lord, and put us to death. और अब हमें मार डालो. Me first, remember. लेकिन याद रखना, मुझे पहले मारना है. The king was now thrown into deep thought. अब राजा बड़ी गंभीर सोच में पड़ गया. He didn't want to lose the kingdom to someone else in the next round of life. वो नहीं चाहता था कि अगले जीवन में
वो ये राज्य किसी और को के हाथ सौंप दे। ही नीडेड टाइम, उसे समय चाहिए था। सो ही ऑर्डर द एग्जीक्यूशन पोस्टपोन्ड टू द नेक्स्ट डे। और उसने इसीलिए इस एग्जीक्यूशन को, ये जो सूली पर चढ़ाने का प्रोग्राम था, इसको अगले दिन के लिए पोस्टपोन कर दिया। एंड टॉक्ड इन सीक्रेट विद हिज मिनिस्टर, और अपने मंत्री से गुपचुप तरीके से सीक्रेट में बात की। इट्स नॉट राइट फॉर अस टू गिव ओवर द किंगडम टू अदर्स इन द नेक्स्ट लाइफ, कि हमारे लिए बुद्धिमानी नहीं होगी कि हम अगले जीवन में अपना राज्य किसी और को दे दें। लेट्स गो ऑन द स्टेक आवरसेल्व्स, हमें खुद ही मर जाना चाहिए। एंड वी विल बी रीबॉर्न एज किंग एंड मिनिस्टर अगेन, और हम फिर से राजा और मंत्री बन जाएंगे। होली मैन डू नॉट टेल लाइज, पवित्र लोग झूठ नहीं बोलते हैं। वो गुरु जो है उसको रेफर कर रहा है कि होली मैन डू नॉट टेल लाइज, झूठ नहीं बोलते हैं पवित्र लोग, सन्यासी लोग। ही सैड, उसने कहा। एंड द मिनिस्टर एग्रीड, और मिनिस्टर उसकी बात से सहमत हो गया। सो ही टोल्ड द एग्जीक्यूशनर्स, और इसीलिए उसने कसाईयों से कहा, एग्जीक्यूशनर्स जो उसे मारने वाले थे, कसाई, उनसे कहा, वी विल सेंड द क्रिमिनल्स टुनाइट, हम क्रिमिनल्स को आज रात को भेजेंगे। व्हेन द फर्स्ट मैन कम्स टू यू पुट हिम टू डेथ फर्स्ट, जब पहला आदमी आए तो उसे मार देना। देन डू द सेम टू द सेकेंड मैन, फिर दूसरे आदमी के साथ यही करना। दोज आर माई ऑर्डर्स, ये मेरे ऑर्डर्स हैं। डोंट मेक एनी मिस्टेक, कोई गलती नहीं होनी चाहिए। दैट नाइट द किंग एंड हिज मिनिस्टर वेंट सीक्रेटली टू द प्रिजन, उस रात वो राजा और मंत्री चुपचाप जेल में गए। रिलीज द गुरु एंड द डिसाइपल, गुरु और चेले को रिलीज कर दिया, छोड़ दिया। डिस्गाइज देमसेल्व्स एज द टू, और उन दोनों के तरह से अपना भेष बदल लिया। डिस्गाइज मीन्स टू चेंज द अपीयरेंस, अपने लुक्स को, अपने दिखने के तरीके को बिल्कुल उनके जैसा बना लिया, गुरु और चेले के जैसा। एंड एज अरेंज्ड बिफोर हैंड, और जैसा कि पहले से ही अरेंज किया गया था। बिफोर हैंड मतलब पहले से। विद लॉयल सर्वेंट्स से, जो बहुत ही वफादार नौकर थे, उनसे पहले ही बता दिया था कि किसी सूली पर चढ़ाना है। वर टेकन टू द स्टेक एंड प्रॉम्प्टली एक्सिक्यूटेड, उनको स्टेक तक ले जाया गया, सूली तक ले जाया गया। एंड प्रॉम्प्टली मीन्स क्विकली, बड़ी जल्दी से उनको एक्सिक्यूट कर दिया गया। देखिए, द किंग इज रिलीजिंग द गुरु एंड डिसाइपल। When the bodies were taken down to be thrown to crows and vultures, the people panicked. और जब उन डेड बॉडीज़ को उठाया गया क्रोज, कौओं और वल्चर्स को खिलाने के लिए, कि अब वो क्योंकि क्रिमिनल्स की डेड बॉडी है, उनको पनिश किया गया है, तो उनको उठा करके कौओं और गिद्धों के पास सामने डाल दिया जाता था कि वो खा लें। जब उन्हें डाल दिया गया, तो डालने ले जाया गया, तो द पीपल पैनिक्ड। पैनिक मीन्स टू हैव एक्सट्रीम फियर, बहुत घबरा गए लोग। दे सॉ बिफोर देम द डेड बॉडीज ऑफ द किंग एंड द मिनिस्टर, उन्होंने अपने सामने राजा और मंत्री की डेड बॉडीज को पाया। द सिटी वॉज इन कन्फ्यूजन, पूरे शहर में कन्फ्यूजन फैल गया, अफरा तफरी फैल गई। ऑल नाइट दे मोर्न्ड एंड डिस्कस द फ्यूचर ऑफ द किंगडम। अब ये मोर्न क्या होता है? मोर्न होता है टू एक्सप्रेस ग्रीफ एट द डेथ ऑफ समवन, किसी की मृत्यु पर जो शोक मनाया जाता है उसे हम मोर्निंग कहते हैं। तो वो सारी रात शोक मनाते रहे और आपस में डिस्कस करते रहे कि अब इस राज्य का भविष्य क्या होगा। Some people suddenly thought of the guru and the disciple, कुछ लोगों को अचानक से गुरु और चेले की याद आ गए। And caught up with them as they were preparing to leave town unnoticed, और जब वो इस चीज़ की कोशिश कर रहे थे कि बिना किसी के नोटिस में आए शहर से बाहर चले जाएं, तो उन्हें लोगों ने पकड़ लिया। We people need a king and a minister, हम लोगों को एक राजा और मंत्री की ज़रूरत है।
said someone, किसी ने कहा. Others agreed. Agree means सहमत हो जाना, मान लेना. बाकी सब उस बात से सहमत थे. They begged the guru and the disciple to be their king and their minister. Begged means requested humbly. बड़ी विनम्रता से प्रार्थना की गुरु और चेले से टू बी देयर किंग एंड देयर मिनिस्टर, कि वो उनके गुरु और उनके राजा और मंत्री बन जाए. इट डिड नॉट टेक मैनी आर्ग्यूमेंट्स टू परसुएड द डिसाइपल. परसुएड मीन्स टू कन्विंस, मना लेना. तो डिसाइपल को मनाने के लिए बहुत आर्ग्यूमेंट नहीं करनी पड़ी. बट इट टुक लॉन्गर टू परसुएड द गुरु, लेकिन गुरु को कन्विंस करने के लिए लंबा समय लगा. दे फाइनली एग्रीड टू रूल द किंगडम, और फाइनली उन्होंने सहमति जता दी इस बात पर कि ठीक है, हम इस राज्य पर शासन करेंगे. ऑफ द फुलिश किंग एंड द सिली मिनिस्टर, मूर्ख राजा और मंत्री के राज्य पर शासन करने के लिए. ऑन द कंडीशन, लेकिन एक कंडीशन पर, ऑन द कंडीशन शर्त पर, दैट दे कुड चेंज ऑल द ओल्ड लॉज, कि वो पुराने नियमों को बदल देंगे. फ्रॉम देन ऑन, उसके बाद से फिर से, नाइट वुड अगेन बी नाइट, रात फिर से रात होने लगी. एंड डे वुड अगेन बी डे, और दिन फिर से दिन होने लगा. एंड यू कुड गेट नथिंग फॉर अ डुडू, और एक डुडू में आपको कुछ नहीं मिल सकता था. इट बिकेम लाइक एनी अदर प्लेस, और ये किसी भी दूसरी जगह के जैसा हो गया. So, in this way, the people of the kingdom of fools got freedom from the foolish king and his minister. With this, the story comes to an end. Let us leave now. Thank you for watching my video. I'll send you the word meanings and question answers in my PDF. Keep studying, stay motivated, stay safe, stay home. Thank you and have a nice day.